Assalamualaikum students. Inshallah, this will be our last episode of the chapter lens. In this last episode, we are going to cover the main part is the uses of the lens. The first topic in this is apparent size of an object. Apparent size. Okay. Apparent size means the size which is not actual. If you go and see a building from very far, बहुत दूर से देख रहे, you will find the size of building is like this या this इतना बड़ा. तो क्या बिल्डिंग का साइज इतना बड़ा था? नहीं. अब in front of me is wall, है ना? मेरे पीछे दीवार है. मैं उसको देख रहा हूँ तो मुझे कितना लग रहा है दीवार का साइज is this much. This much is the size of the wall. The length from top, bottom to top, is this much. ये क्या साइज इतना ही है? नहीं है. तो ये जो साइज what we are observing or I am observing is apparent in our eye. So how it happened? We will learn in detail about this. It's all about the angle. The more the angle, the more the size will be. The apparent size of an object depends on the angle of subtended by the object at the eye. So it depends upon the angle subtended. Angle subtended means form. Angle formed in the eye. The angle formed by the wall is less. And suppose someone is in front of me, that is this camera. So the angle formed is large. So camera with their stand is appearing to me larger than the wall because of the angle only. See here, two objects are there. One name is PQ, another name is P1, Q1. The PQ is nearby and P1, Q1 is far away. Since it is nearby, the angle formed by the PQ will be more. This is the angle of PQ. This alpha. This is the angle of PQ. The angle formed by P1, Q1 is less. So this is the angle. Okay, it is even half of it. Even less than half of the angle formed by P and Q. See, this is the angle. Since it is nearby, the angle is more. The near object has the more angle. The more the angle, the bigger the size of the object. It means it is direct proportion. The bigger the angle, the larger the object will appear to us. The smaller the angle, the smaller will be the object. Though the size of PQ and P1, Q1 is same. Both are same size, but still the angle formed by the PQ is more because it is nearby. So it appears to us more larger. And P1, Q1 it is far and the angle formed by P1, Q1 is lesser. That's why it is smaller in size. These all are things are written over here. See, the angle formed by is this, and the angle formed by PQ is much. So it will be appear bigger. Now the uses of concave lens. We have concave lens and it is used in multiple purpose. All the optical instrument like scanner is there, CD player, and then that medical equipment. It has various uses. The instrument use laser light, so it is concave lens are used over here. Concave lenses are used for other purpose also. What are they? The peep hole in the door. Why we are using concave lens over here? I taught you the ray diagram in my earlier episode of this chapter. The ray diagram of concave lens is that it is forming image on the same side and it is erect. Yeah, the image is on the same side, it is direct and image is diminished. एक सामने आदमी खड़ा है ऐसे
है ना, तो हम लोग झांक के देखते हैं ऐसा, तो कितना आदमी देखते हैं छोटा ही दिखता है ना, इतना बड़ा आदमी का पूरा सर्कल वो दिख जाता है इतने छोटे साइड में। तो इमेज फॉर्म इज लो ऑन द सेम साइड, वही साइड इमेज के वही साइड में बनता है इमेज जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट द पर्सन को झांक रहा है कोई ना, आपके घर में चोर आ गया तो आप झांक के देखते हो अच्छा ये अब्बू है कि कौन है भाई है, ऐसा देखते हो। तो ये चीज होना चाहिए, खास कर गर्ल्स लोग घर में अकेले रहते हैं तो यू शुड टेक द प्रिकॉशन लाइक दिस। यहाँ पे ये होता है डोर में जब चेन लगा हुआ होता है पहले देख लिए, है ना, तो अदरवाइज क्या होगा, अब इसमें क्या होता है कि ये अब सिंगल आदमी को देख ले चलो, लेकिन आजू बाजू में दो जन छुपे हुए, तो वी शुड ओपन द डोर इन सेफ्टी मैनर। थोड़ा अकल लगाने का यूज है ना, दूसरा जगह पे यूज करते हैं, हर जगह पे यूज करने का अकल। सेफ्टी इज द फर्स्ट मेथड। तो यहाँ इसीलिए हम लोग कॉन्केव लेंस यूज करते हैं क्योंकि ये इमेज डायरेक्ट दिखाता है, ये इमेज को डिमिनिश करके दिखाता है ऑब्जेक्ट इमेज साइज को, ऑन द सेम साइड बनता है। ना और दूसरे क्या यूजेज है, कॉन्केव लेंस आर यूज्ड फॉर नियर साइटेडनेस। ना नियर साइटेडनेस यू रिमेंबर आई हैव अपलोडेड दैट लेक्चर ना, नजदीक वाले बीमारी सिर्फ नजदीक का देख सकते हैं और दूर का पार वाले का दे आर नॉट एबल टू सी, तो कॉन्केव लेंस आर यूज्ड इन दैट स्पेक्टिकल। टॉर्च में सी टॉर्च कैसे रहता है, लाइक दैट केव शेप, तो लाइट विल रिफ्लेक्ट ऑफ एयर एंड इट विल फोकस। कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप दे यूज मेनली कॉन्वेक्स लेंस, बट है ना क्या करते हैं साथ में कभी कभी यूज किया जाता है कॉन्केव लेंस भी यूज करते हैं आई पीस और साइड ताकि उसका बेटर इमेज बने। नाउ यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, सिंपल माइक्रोस्कोप जो आपके स्कूल में रहते हैं वो यूज करता है सिंपल माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंस रहता है। हाइट वर्क कैसे करते हैं, इट हैज अ सिंगल लेंस, द सिंगल लेंस द फोकल इज स्मॉलर, फोकल लेंथ है ना, फोकल लेंथ इसका स्मॉलर है। अब ये जो माइक्रोस्कोप में ना इमेज 20 टाइम्स बिगर दिखाता है, तो इमेज इसमें आप क्या देख सकते हैं, टॉर्च देखो जो रिपेयरिंग करने वाले वॉच वो यूज करते हैं, जेम्स जो बनाते हैं वो यूज करते हैं, और जो हमें ब्रॉडर चीज देखने का आता है स्कूल में प्रैक्टिकल लैब में वो भी हमें देखते हैं। तो ये हाइट फंक्शन ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस से आपको ये रे डायग्राम सब में यूज हो रहा है, तो आप रे डायग्राम अगर नहीं याद है या भूल के तो एक बार जस्ट गो थ्रू इट और ये फिर आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है, हमने कॉन्वेक्स लेंस देखा, ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा रे डायग्राम में हमने 6 रे डायग्राम पढ़े थे। जब कॉन्केव लेंस रहता है तो उसके बैक साइड इमेज किस में बन रहा है, कौन से रे डायग्राम में बनता है, डू यू रिमेंबर, याद है, आप वापस से देखो और कम बैक टू इट। माय क्वेश्चन वाज ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑफ हियर रे और उसके पीछे इमेज बन रहा है, ओनली वन इज दैट, है ना, ये वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट को प्लेस कहां पे करें, ये ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कॉन्केव लेंस के कॉन्वेक्स लेंस के सॉरी। तो इमेज जो बनेगा एट द बैक साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज विल बी लार्जर, इमेज विल बी इरेक्ट, एक ही इरेक्ट इमेज बनता है कॉन्वेक्स में जब हम लोग फोकल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं। तो यहाँ पे रखे तो इमेज बैक साइड में बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, लार्ज बन रहा है, 20 टाइम्स लार्ज हो जाता है इमेज। तो हम लोग देख सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। दिस इज वर्चुअल इमेज ऑल्सो। इसका अदर यूज देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक से ज्यादा लेंस यूज होता है, प्लस क्या होता है कि वो ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर होता है, उसमें स्मॉलर चीज बैक्टीरिया सेल के बारे में स्टडी करते हैं। पैथोलॉजी लैब में इस सब में भी यूज होता है, तो बैक्टीरिया, ब्लड सेल, प्लांट सेल, ये सब इससे वी कैन सी इन मच लार्जर वे। दिस इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हाउ इट वर्क्स हियर, इट हैज 2 टाइप्स ऑफ लेंस। जो हमारे आई के पास रहेगा उसको आई पीस बोलेंगे, जो हमारे आई के पास, जैसे हम देख रहे तो आई पीस वन। जो ऑब्जेक्ट के पास रहता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, क्लियर। अब इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस का जो क्रॉस सेक्शन है ना वो क्या होता है, स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू आई पीस वाले से।
अब ये क्रॉस सेक्शन स्मॉलर है तो साथ साथ इसका फोकल लेंथ भी स्मॉलर है, इसका फोकल लेंथ बिगर है, तो ये स्मॉलर इमेज बनाएगा, ये मच बिगर इमेज बनाएगा। अभी क्या हुआ कि मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रखा इन बिटवीन, कहां पे रख सकते हैं, यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है कि फोकस ये F2 पे रख रहे हैं, F2 पे ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी F2 पे रख रहे हैं ना, तो इमेज यहाँ पे बन रहा है, F2 पे इमेज बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है शायद इमेज, यस है ना, इमेज बना, ये इसको भी भूल जाओ ना, ये आयरस लाइट है, लव के पास पर यहाँ पे मर्ज हुआ जाके। अगर ये हम लोग कहाँ पे रख रहे हैं, फोकस और F2 के बीच में, F1 और F2 के बीच में रख रहे हैं, तो ये बियॉन्ड F2 के इमेज बनेगा, तो मुझे लग रहा है साइज सेम है, तो वहां पे सेम बन रहा है। अभी तो यहाँ पे इमेज बन गया, ओके ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट का, ये जो लेंस का इमेज है ना, ये क्या होता है, इसके लिए आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है, इसका इमेज यहाँ पे बना, अब ये जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट बन रहा है, किसके लिए, आईपीस के लिए। तो आप देखो यहाँ पे इसका फोकल लेंथ क्या है, यहाँ पे फोकल लेंथ यहाँ पे, मतलब इट इज बिटवीन फोकल लेंथ एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रहा है, तो इमेज, हाउ द इमेज विल बी मेड, द इमेज विल बी मेड इरेक्ट, है ना, वर्चुअल एंड इनलार्ज। तो देखो ऑब्जेक्ट इधर ही है, तो ये उल्टा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा बन रहा है, कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा आउट ऑफ 6 5 में क्या है, इन्वर्टेड बनता है, सिर्फ एक में इरेक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह से जब इसका ये बेंड है, तो ये भी इमेज का भी क्या हो रहा है, बेंड बन रहा है, तो मतलब कहाँ पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट, कहाँ पे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, देखो हमें, है ना, यहाँ पे दिख गया, तो हमें क्या लग रहा है, इमेज वर्चुअल इमेज बन रहा है और इनलार्ज हो रहा है ज्यादा, है ना, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बिहाइंड बन रहे हैं। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में है। अभी देखते हैं टेलीस्कोप पे, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इन टेलीस्कोप। टेलीस्कोप पे फार अवे ऑब्जेक्ट जो है ना, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, स्टार्स, प्लैनेट, ये सब भी ऑब्जर्व। अब टेलीस्कोप, दो तरह का टेलीस्कोप होता है, the first one is refracting, जहाँ पे रिफ्रैक्ट करके we see the image, another one is reflecting, यहाँ पे मिरर यूज करते हैं और लेंस दोनों कंबाइन यूज करते हैं। तो हमारे बुक पे जो है रिफ्रैक्टिंग वाला का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, in this both this the image formed by objective, okay, but I said image formed by the objective will be the object of eyepiece lens, एपिस लेंस का इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना, इमेज यहाँ पे बना, और ये जो इमेज बना ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अभी ये जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप था उससे थोड़ा ये चेंज है, क्या चेंज है, अपोजिट है, कि यहाँ पे आईपीस इनलार्ज था और ऑब्जेक्टिव लेंस स्मॉलर था। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस इज लार्जर एंड आईपीस इज स्मॉलर। अब ऐसे क्यों होता है, क्योंकि फार अवे ऑब्जेक्ट है तो लाइट में ज्यादा आना चाहिए, इसीलिए क्या हो रहा है, इसका लेंस का साइज ज्यादा रखते हैं, तो लेंस का साइज ज्यादा है तो फोकल लेंथ भी ज्यादा रहेगा, फोकल लेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इंफिनिटी से आ रहा है तो इसलिए पहला आ रहा है यहाँ पे इमेज, और आके यहाँ पे इमेज हमें यहाँ पे मिल रहा है, फोकस पे इमेज मिल रहा है। जो इमेज यहाँ पे बना तो ये क्या हो गया, इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये जब ऑब्जेक्ट हो गया तो क्या हो रहा है, इमेज हमें क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं, है ना, ये क्या हो रहा है, इमेज हमें लग रहा है कि यहां से आ रहा है, ये साइड से इमेज हमें बनते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, this is the function of telescope. Persistence of vision.
अभी क्या हुआ, आपने इंसेंस लिया, अगरबत्ती लिया, उसको रोटेट कर स्पीड में, तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि क्या वो सिंगल लाइनिंग है, इट इज सिंगल, इट्स अ सर्कुलर, सब मोशन हो रहा है, मतलब कंटिन्यूअस मोशन में, या मतलब रेड कलर का लाइनिंग दिखेगा ऐसा। तो ऐसे वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो जब एक बार इधर पहुंचा तो इधर तो नहीं है ना, इधर पहुंचा तो इधर नहीं है, तो हमें ऐसा क्या लगेगा कि ये कंटिन्यूअस है। ऐसा क्यों होता है? व्हाट द रीजन? द रीजन इज कि अवर आई, देख लेते हो डायग्राम होता है, एक मिनट, एक और ऑब्जर्वेशन है, ब्राइट सर्कल आपको रोटेट करते दिखेगा। अभी हाँ, दूसरा एग्जांपल क्या था कि आपने एक कॉइन लिया, ओके, लाइक दिस, डिस्क लिया, डिस्क में पीछे बर्ड बनाया, सामने क्या किया, केज बना दिया, केज बना दिया, धागा से को थ्रेड से बंद कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, उसको रोटेट करना स्टार्ट किए, तो इट अपीयर टू अस कि वो जो बर्ड है वो केज के अंदर है, बर्ड तो एट द बैक साइड था, केज पीछे था, तो हमें अपीयर लगेगा कैसा कि वो क्या हो रहा है, ये केज के अंदर है बर्ड, नॉट मूविंग फास्ट, पास में होगा तो लगेगा कि बर्ड केज के अंदर है। तो ये दिस इज द परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं। ये होता है क्या कि इमेज कहाँ पे बन रहा है, रेटिना पे बन रहा है ना। अब ये जब रेटिना पे इमेज बनता है, तो जब हम लोग इमेज को, ऑब्जेक्ट को हटा देते तो इमेज भी हट जाता है ना, इमेज गायब हो जाता है। अभी कोई चीज दिख रहा है मुझे सामने, एक पिक्चर रखा हुआ दिख रहा है, वो जब पिक्चर हटा दिया जाएगा, दैट इज ऑब्जेक्ट, तो हमारे इमेज जो रेटिना पे बन रहा था वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, ये ऑन द स्पॉट फास्ट नहीं होता है, इंस्टेंटेनियस नहीं होता है ना। तो ये टेक 1/6 सेकंड, 1/6 सेकंड तक क्या होता है, इमेज हमारे रेटिना पे बना होता है। अगर इन बिटवीन उसके क्या हो रहा है, प्रोसेस कुछ हो रहा है, तो हमें लगेगा कि वो चीज वहां पे ही है। तो जब हम लोग क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, तो 1/6 सेकंड में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो हमें क्या लग रहा था, हमारा जो रेटिना पे इमेज था ना, वो कंटिन्यूअस इमेज रहता ही है ना। हाँ वहां पे है, वहां पे दिख रहा है, हाँ वहां पे वो बर्निंग हो ही रहा है। तो इस तरह से हमें अपीयर होता है, भले वो ऑब्जेक्ट वहां से मूव हो चुका होगा। तो यहाँ का ऑब्जेक्ट है, हट गया, तो रेटिना पे से 1/6 सेकंड आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज रिमूव। तो इन बिटवीन क्या होगा, अगर 1/6 सेकंड के बीच में कोई ऑब्जेक्ट बार बार रोटेट हो रहा है, तो हमें वो इमेज कंटिन्यूअस वही दिखता रहेगा, भले वो चीज रोटेट हो रहा है या कुछ भी है। अभी लास्ट में ये टॉपिक है, टॉट भी ऑलरेडी वापस से देख लेते हैं, स्लाइड में है कि हमारे रेटिना पे है सेंसिटिव सेल होती है, लाइट सेंसिटिव सेल। अब वो कौन है, कॉर्ड एंड कौन है, रॉड। ये रॉड शेप में है और ये कौन शेप में है, तो इसलिए ऐसा इसका नाम दिया गया। अब फंक्शन क्या है, रॉड शेप जो है ना, ये डीम लाइट, ब्राइटनेस ऑफ द लाइट और डिमनेस बताता है, कि मतलब कोई ऑब्जेक्ट से कितना डल है लाइट, ब्राइट है लाइट, ये बताता है। तो कौन क्या बताता है, कौन कलर बताता है, वो रेड कलर है, ब्लू कलर है, येलो कलर है, जो भी कलर वो बताता है। तो ये दोनों इस तरह से हमें फंक्शन होता है कलर्स। अभी अगर किसी का तो अब देखिए, जो रात में कभी आप जाए ना हाईवे पे, तो आपको जो कार सामने आ रहेगा ना, तो वो कलरफुल नहीं दिखता, आपको कार कलरफुल नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि हमारा कौन जो शेप है ना, कौन शेप जो सेल होता है वो कलर ऑब्जर्व नहीं करता, वहां पे सिर्फ क्या करता है, रॉड एक्टिव रहता है, ब्राइटनेस और डल बताता है वो, है ना। और दिन में क्या होता है, जब ब्राइटनेस रहता है तो हमें कलर क्या होता है, हमें दिखती है। कलर कौन सा कलर है, रेड है, ब्लू है, व्हाइट है। अच्छा, बहुत सारे आदमी में क्या होता है कि कलर कम होता है, कौन सा, ये कौन शेप जो रॉड होता है, सेल होता है, वो कम होता है। तो क्या होगा, उसको हम कलर ब्लाइंड बोलते हैं। उसका आई विजन सही है, वो देख रहा है चीज, लेकिन वो कलर को डिटेक्ट नहीं कर रहा है। नॉर्मल विजन वाले के लिए रेड है, ग्रीन है, येलो,
तो ब्लाइंड वाले के लिए क्या रहेगा, जो कलर ब्लाइंड है तो उसके लिए रेड ग्रीन जो है ऐसा दिख रहा है, रेड ऐसा दिख रहा है, येलो ऐसा दिखेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको सोचो अल्लाह ताला ने हर चीज कैसे बनाया कि आपके लिए कलर जो दिख रहा है ये, तो ये आपके आई में की प्रॉपर्टी है। वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह कि हमारे आई में कौन शेप का जो सेल है उसकी वजह से हम लोग कलर एंजॉय कर रहे थे। तो जो भी आप देखते हैं सब आपको एक जैसा समझ में आएगा कलर। तो दिस इज द कलर वी एंजॉय। So this is the end of the chapter. Now, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.